Is PPT visible? Yes, PPT is visible. Hello. Am I audible? PPT visible आहेत का? Yes, sir. I'll start. Okay, so in last session of STP4, we have discussed what is research and for that research. All is a good bad research. Now, very important step of your research work is a little survey. What do you because you have a strong literature survey, you are in come to some conclusion. You cannot study or go for research in a vague manner. का कोई end ही नहीं. You have to delimit your study, as I have explained you the meaning of this delimit. There are so many options search, but we are going to concentrate on simply few of the points. That is what we call as a delimiting our research. For example, I have 10 options. Out of that 10, I will work on 2 or 3 and complete my survey, complete my research, and at the described time period, I will come to the conclusion. I am able to publish it. That is the reason to delimit your research. कि वैसे तो कोई रिसर्च टॉपिक ऐसा नहीं कि जो कभी एंड होगा. दैट वाज एंडलेस रिसर्च. कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा एंड देन यू टू गो फॉर राइटिंग एंड पब्लिशिंग द वर्क एंड जो भी पेंडिंग वर्क है आपका दैट यू टू योर फ्यूचर स्कोप. So to complete your work, research work, the very important step is the literature review. Most of the students, I can say you also, are going to skip this particular chapter. आपका अभी project report बनेगा, BE का project report. You start with your first chapter, that was introduction, and expected second chapter is a literature review, that to be very strong. Then you can go for chapter number 3, that was the system design. जो भी आपका design होगा, block diagram, then selection of your component, and then finally in last next chapter we will come to the design method. क्या आपने exactly procedure use किया, क्या algorithm use किए, that and finally you will come to the result, and then the conclusion, and then your bibliography. That was actually structure of your report, but most of the student or people forget to write this chapter number 2, that was a literature review, which is actually a reason to justify your project research. Okay, there you will get your exact justification कि ये project ये topic मैंने क्यों select किया, why I am interested in this particular research work. Okay, इसका strong reason आपके पास मिल जाएगा. Okay, so at the end of this particular session, I'll show you my own literature review. That was work done till date from my side, because I'm also pursuing PhD, and that was my part of my research
before going for finalization of your title, I should do literature survey. Okay, so I'll show you that part at the end. We'll go through this PPT in थोड़ा सा फास्ट में जाएंगे, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज सिर्फ बातें करने से अच्छा है कि मैं कुछ आपको कंस्ट्रक्टिव दिखाऊं, like a case study. Okay, exactly. I'll take example and how you done this survey that I want to show you. Okay. बाकी बहुत सारे आपको एडवाइस मिल जाएंगे, ऐसा करो वैसा करो, ये लिखो वो लिखो लिखो. So there are so many material available. You can refer that book. That is I think कोठारी. That was I think R.K. कोठारी या कुछ तो है, कोठारी उसका नाम है उस बुक का, रिसर्च मेथोडोलॉजी करके. आपके लाइब्रेरी में भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी में. So you may refer that book for actual further study. The same PPTs are actually generated from that book only. So I will go in almost fast manner into this PPT. And interesting part, I want to show you my work of literature review. Okay. So a literature review is a critical analysis of existing research. Thing is that the things are existing related to the specific topic. Okay, this is very important word, specific topic, as I have already highlighted you. You have to delimit your work. तो आपको specific topic पे ऊपर analysis के लिए जाना है. This leads to clarity on state of knowledge. Okay, आपको state of knowledge आएगा, as well as gaps in knowledge. ये दो जो टर्म है, ये सुनने को सिर्फ अच्छा लगता है, लेकिन एग्जैक्टली हम अगर उसको परफॉर्म करते हैं ना, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. तो आई विल शो यू हाउ टू फाइंड दिस गैप. ओके, एंड हाउ टू गेट दिस स्टेट ऑफ योर नॉलेज. ओके, so this two term will show you exactly with that case study. तो अगर मैंने लिटरेचर रिव्यू स्ट्रांगली कंप्लीट किया है, तो ये क्लियरिटी आ जाएगी कि मेरा नॉलेज क्या है, स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है और गैप क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक में. ये जो आपने टॉपिक सिलेक्ट किया है, स्पेसिफिक टॉपिक, उसके ऊपर आपको गैप फाइंड करना है. So review of existing literature is one of the essential preliminary tasks when understanding research work. That was actually basic term to go for literature review. This leads to some justification of your research. As I told you previously, you can justify your research कि ये particular topic क्यों select किया, what is the advantage of selecting this particular topic, इसका आपको क्या फायदा होगा, आपके सोसाइटी को क्या फायदा होगा, and that you strongly put कि ये ऐसा है इसलिए मैंने इसको select किया. Okay, so that helps you showing you gaps in knowledge. Okay, a demonstrate purpose of research work, that was very important point. Demonstrate that proposed work hasn't been previously done. ये भी आपको दिखाना है कि ये पहले किसी ने काम नहीं किया है. This was very important, क्योंकि already अगर किसी ने काम किया है और probably that will be a patented work, तो definitely will be in a problem. ऑलरेडी उसके ऊपर काम पब्लिश हो चुका है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते हैं. तो यू हैव टू फाइंड द गैप इन दैट पर्टिकुलर वर्क. आपका एग्जिस्टिंग ही वर्क है, लेकिन उसमें आपको गैप फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू गो फॉर योर ओरिजिनल वर्क सो दैट इट डजंट बीन पब्लिश प्रीवियसली. ओके, दैट इज हाउ यू कैन वर्क. आप कुछ नया नहीं करने वाले, जो एग्जिस्टिंग है उसका ही आप गैप फाइंड करेंगे, and then you publish your work as an original work. Ensures intellectual contribution is indeed original. आपको चेक करना है, मेक श्योर करना है कि जो आप पब्लिश कर रहे हैं मटेरियल, वो आपका खुद का ओरिजिनल है. ओके, it will demonstrate that theory and methodologies in the field have been critic, means आपका ओरिजिनल मेथड्स आपने यूज किया है. That helps justify the arguments related to the proposed research work. Okay, this is what happened if what is the purpose of that literature review. That will be one out of this possible things. If you do strong literature survey, you can identify gaps in literature review, find other people working in your field. आपके फील्ड में कौन और कौन काम कर रहा है, वो भी आपको समझ में आएगा.
You can identify major seminal work, ज़्यादा काम किसने किया है. Identify main methodologies and research technique, so that आप भी decide करें कि ये method already use हुआ है, तो I cannot go for that same method. Identify main idea, conclusions and theories and establish similarity and difference. ये सबसे important point है. आपको similar part क्या है उसमें ये भी establish करना है, और different क्या है ये भी आपको establish करना है. Means आपको सब करना है. मीन्स अच्छा भी काम करना है और बुरा भी. मीन्स बुरा मीन्स सो दैट आपको कुछ गैप मिल जाए. इट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर योर ओन रिसर्च वर्क. आपका रिसर्च ओन होने के लिए या खुद का होने के लिए आपको कुछ मटेरियल मिल जाएगा. शो रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस स्टडी एंड थियरीज. आपके प्रीवियस स्टडी में क्या क्या आपके काम का रिलेशन है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अगर आपका लिटरेचर भी स्ट्रांग होगा तो. Find out what information already exists in your field of research. Okay, तो इतने सारे एडवांटेज है अगर आपने आपका लिटरेचर रिव्यू स्ट्रॉन्ग किया तो. ओके, एंड यू कैन जस्टिफाई योर रिसर्च. Then what do you mean by good literature review and bad literature review? अभी रिव्यू तो करना है, ये तो डिसाइड हुआ. अभी तक मुझे पता चला कि गुड रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करना है. अब किसको हम अच्छा बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे. is a synthesis of available research, is a critical evaluation, has a appropriate breadth and depth, has a clarity and consistence. इतने सारे पॉइंट अगर उस पर्टिकुलर रिव्यू में कवर होते हैं तो वी कैन से इट वाज अ गुड रिव्यू. बैड रिव्यू किसको बोल सकते हैं हम. इट वाज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बिब्लियोग्राफी. It's a short, you can say, description, narrow, shallow. Shallow means आप कुछ छुपा रहे हैं. Means you are not exposing whole work. Okay. Sometimes it is confusing. You are not sure कि exactly ये है या नहीं है. Okay. And constructed in a arbitrary way. ऐसे जैसे जनरली कुछ सिस्टमैटिक मैनर नहीं है उसको, ऐसे उसको अपने जनरेट किया है. ओके, सो आई विल शो यू हाउ आवर लिटरेचर कैन बी सिस्टमैटिक. ये भी मैं आपको दिखाऊंगा हाउ इट इज नॉट आर्बिट्री. ओके, आई विल शो यू कि हाउ दिस is not actually covered in literature review, but all these points are almost covered in a literature review and in your case study. Then important critics with respect to literature review. A critic is a systematic way of reviewing critically the literature, what we call as a published research paper, to highlight both strength and weakness. So very important is you have to highlight both strength as well as weakness. ना कि आपको सिर्फ strength को ही बताना है, आपके weakness को ही बताना है. Means अगर आप बोलते कि मुझे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट स्पीक फ्लुएंटली लाइक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं. यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी, यू हैव दैट माइंड टू एक्सेप्ट योर वीकनेस. ओके, तो ये भी आपके आगे वाले पर्सन पे इम्प्रेस करने के लिए पॉइंट है कि आपने उसका स्टडी किया है. सी किसी का वीकनेस बताना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि उसके लिए उसका स्टडी होना चाहिए, तो ही आप उसका वीकनेस बता सकते हैं. नॉर्मली वीकनेस ये हिडन पार्ट रहता है, और हिडन पार्ट को बाहर लाने के लिए आपको कुछ स्टडी करना पड़ता है. जो स्ट्रेंथ है ये तो ओपनली सबको दिख जाएंगे. जो स्ट्रेंथ है डेफिनेटली वो पब्लिशर ऑथर क्या करेगा, उसको हाईलाइट ही करेगा. ही विल पब्लिश पेपर, ही विल गो फॉर एनी रिसर्च फंडिंग, सो मेनी थिंग. तो जो अच्छा पार्ट है वो तो हाईलाइट होगा ही होगा. तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगता स्ट्रेंथ बताने में, लेकिन दिमाग किसमें लगता है, इस पर्टिकुलर इसमें वीकनेस बताने में. क्या हिडन पार्ट है, ऑथर ने क्या इसमें हाइड किया है, किसको इग्नोर किया है, क्या फीचर वर्क उसने छोड़ा है, इसको समझने के लिए आपको पूरा पेपर स्टडी करना पड़ेगा, उसका पूरा मटेरियल स्टडी करना पड़ेगा. सो whenever you show this particular weakness of this particular paper or research, it is indirectly mean that you have studied that particular work. Okay, so these are main critics you have to follow, that I will not discuss all the one which is written over here. Then very important is the process of literature review, how to follow this process.
वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्चिंग ऑफ लिटरेचर। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर्च कहाँ पे करें? तो नॉर्मली आपके दिमाग में क्या आता है? गूगल पे जाओ, आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसको टाइप करो एंड सर्च द मटेरियल। दिस वाज द सिंपलेस्ट, वेरी सिंपल वे टू फाइंड योर लिटरेचर सर्वे, ऐसा आपको लगता है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू। दिस इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ सर्चिंग योर लिटरेचर। ये आप वेबसाइट पे गूगल पे सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, तो गूगल पे जो मटेरियल होता है ये किसने पब्लिश किया होता है? कौन उसके ऊपर डालता है मटेरियल? हम लोग ही हैं जिसके ऊपर वो मटेरियल डालते हैं। एंड गूगल इज ओनली थिंग, वो सर्वर है, उसके ऊपर सब स्टोर होता है, उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर उसके कीवर्ड मैच होते हैं तो आपको मटेरियल बाहर ला के दिखाता है, हाँ दिस इज अवेलेबल। बट उसका कोई गारंटी ऑथेंटिकेशन होता नहीं। ये विल कम टू वन पॉइंट दैट आप कभी कोई मटेरियल पब्लिश करेंगे और अगर आपने कोई रेफरेंस दिया गूगल का, आई फाइंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन गूगल, यू दिस पर्टिकुलर इज नॉट अ वैलिड आंसर। गूगल का कोई भी नॉर्मली विकिपीडिया, that is also you will get so many input from Wikipedia, but that is not a valid authorized material you should trust. Okay, so to search your material on Google is very bad thing. So what is then good? That is very important. Okay, that I will show you where to study, where to search your material. So you have to go for some Scopus index like some Springer journal, IEEE journal, उसके ऊपर आपको सर्च करना पड़ेगा। अभी फिर से क्वेश्चन आता है कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ दैट IEEE और स्प्रिंगर, तो आई विल नॉट एबल टू व्यू दैट पर्टिकुलर मटेरियल। तो उसको भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप एक साल का अगर उसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारे मटेरियल या उनके भी कुछ ओपन सोर्स मटेरियल रहते हैं, बट यू टू मेक श्योर दैट इज अवेलेबल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट like Springer or IEEE. So that you have to take care. And about the journal, normally you refer few journals also, conferences भी आप refer करते हैं, so which is a conference which is I can say authorized. Suppose I have one conference IIJMC, ऐसा कुछ तो नाम है IIJMC, okay, बट यू विल फाइंड दैट IIJMC के एक्चुअली दो वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे रहते हैं, एक रहता है फेक वाला और एक रहता है ओरिजिनल वाला। तो डेफिनेटली जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो फेक पे ही आप उसको, फेक में ही आप जाते हैं, वहीं पे आपका सर्च होता है और जो ओरिजिनल वेबसाइट रहता है वो पीछे रह जाता है। तो हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट लिंक ऑफ दैट ओरिजिनल कॉन्फ्रेंस, how to identify whether this is a indexed one or it is having citation, good citation for the journal, ये कैसे हम ढूंढेंगे? So I'll show you that point in my point कि मैंने कैसे निकाला उसको, and how to confirm this conference या जो आपका पेपर है वो पब्लिश जहाँ पे हुआ है वो करेक्ट जगह पे है। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-70% वेबसाइट्स आर फेक वेबसाइट्स। आपको ये अभी मालूम भी होगा कि कुछ पैसा कमाने के लिए दे आर आस्किंग यू टू पे सम मनी, 1,000 भरो, 2,000 भरो, 3,000 भरो, 5,000 भरो, 7,000 भरो, विल पब्लिश योर मटेरियल इन पर्टिकुलर स्कोपस इंडेक्स एंड सो ऑन। ओके, तो नॉर्मली these are the fake websites, you have to take care. Okay, so I'll show you how to find correct website and review the literature. That was actually our agenda, usko review karna. So I'll show you how to review this literature with the example. Searching the literature, that sources are journal, periodical, then books, reports from internet also you can find out, but the most important thing is to find authentication. Okay, that is a रिव्यू योर लिटरेचर। रिव्यू करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना उसको, ये देखो वर्ड क्या है, रिव्यू।
इसको एक्चुअली 2 वर्ड में कंबाइन किया है। एक है पहली बात है व्यू करना, सिर्फ देखना, ओके। एंड अभी अगर उसको मैं बोलता हूँ रिव्यू, मतलब उससे कुछ मुझे अभी कंस्ट्रक्टिव आउटपुट निकालना है जो कि मेरे काम का है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिव्यूइंग। फिर से उसको दोबारा देख लो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, okay. So it's a reviewing your literature. So I'll tell you how to review your literature survey in my work. So same thing, after review you are able to answer these points: aim, objective, purpose, then central findings, then implication of your findings, then contribution of your research, what are the aspect, then comparison, then broad area, what are that, and further research or feature scope. These are the points will be highlighted when you review your survey. These are the steps. I'll not go in detail of this particular steps. ये जो मेरे यहाँ पे जो लिखा है उसको सिर्फ स्टेप में उन्होंने एक्सप्लेन किया है. In step 1, summarize the argument, methods and methodology, the findings and their implications. ये पहला काम है आपका स्टेप नंबर 1 में. Step number 2 में you have to summarize the summaries. Write few sentences that tell the research what researcher in the field have found or argued on the broad focus area of research. Okay, तो कुछ सेंटेंस आपको तैयार करने हैं. Step 2 send. In step 3 mention that gaps. Okay, अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है गैप को फाइंड करना. That I will tell you. अभी यहाँ पे सिर्फ वर्ड में लिखा है ऐसा गैप फाइंड करो, लेकिन एग्जैक्टली जब हम करते हैं काम तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज टॉपिक टू टॉपिक ये गैप फाइंड करने का टेक्निक बदल सकता है. मेंशन दैट गैप एग्जिस्ट एंड प्रपोज फोकस हैज रिसीव्ड लेस अटेंशन, हैज नॉट बीन इन्वेस्टिगेटेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव और रिमेन्स contested or uncertain in some way. Okay, ये कैसे अलग है, इसका गैप क्या है, इसको आपको फाइंड करना इन शॉर्ट. ओके, दैट I'll tell you. Step number 4, summarize the main points of the theme paper or books on precise area of proposed research. ये आपको समराइज करना है मेन पॉइंट पे, जो आपके कुछ पेपर्स उसको थीम को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके थीम को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कुछ पेपर को आपको समराइज करना है. देखो, सर्वे करने में आपको आइडियली कम से कम अगर आपको गुड रिसर्च करना है तो 150 पेपर्स आपको रेफर करने पड़ेंगे, विच इज वेरी वेरी बिग काउंट. ओके, on from that 150 paper we are supposed to come to the 50 paper. उस 150 में से अच्छे वाले 50 पेपर आपको बाहर निकालने हैं. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ द थीम पेपर. थीम पेपर किसको बोलते हैं? 150 में से मुझे 50 पेपर ऐसे निकालने हैं जो मेरे थीम से रिलेटेड है. सो हाउ टू फाइंड दैट 50 पेपर, दैट विल सी. एंड राइट द एम ऑफ प्रपोज्ड रिसर्च वर्क. एम में आप ऑब्जेक्टिव भी ऐड कर सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव आपके काम का. अब ये जो स्टेप नंबर 5 है, अगर आपने पहले 4 स्टेप प्रॉपरली किए तो स्टेप नंबर 5 आपका कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं. लेकिन आपके अगर पहले 4 स्टेप गलत हो गए, कुछ पुअर रिव्यू हुआ, तो डेफिनेटली स्टेप नंबर 5 विल नॉट बी अ फ्रूटफुल. So that is what assignment I will tell you about this assignment at the end. Okay, अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या करना है. Okay, so I will tell you this assignment orally. मुझे क्या चाहिए as a one assignment, you will submit me in PDF form. Okay, what about PT on literature review. Now the interesting part which I should share with you is my work. Okay. Okay. So now come to the exact literature survey. मैं जो हमने अभी तक पीपीटी में डिस्कस किया
वो एग्जैक्टली क्या है, मीन्स कैसे उसको एग्जैक्टली परफॉर्म करना है। आई टेल यू, डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक ऑफ सिलेक्शन, आपका मेथडोलॉजी बदल सकता है, बट एग्जैक्टली आपको टाइटल तो पहले फाइनल करना है, एक ब्रॉड एरिया फाइनल करना है जिसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद आप उस ब्रांच को ढूंढेंगे जिसके ऊपर आपको काम करना है। मीन्स एक पहला बड़ा पेड़ तो आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद हम उस पेड़ की एक ब्रांच पे कुछ काम करेंगे, बराबर क्या। तो माय फर्स्ट पार्ट इज टू फाइंड ब्रॉड सेंस और ब्रॉड व्यू। एक पेड़ ढूंढना है मुझे, तो आई फाइंड दैट दिस 5G एंटीना। Nowadays, 5G is coming in market. You are now aware that you are working on 4G, and 5G is about to come in market within 1 or 2 years. Okay, so there is a tremendous scope of research in 5G, and as per my knowledge, 5G is a new topic जिसके ऊपर अभी तक ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब मैं एक्चुअली सर्वे कंप्लीट किया तो देयर इज़ अ ट्रेमेंडस वर्क हैपन इन प्रोबेबली चाइना। चाइना में बहुत सारा काम 5G पे ऊपर हुआ है। ओके, तो ऐसा मुझे इनिशियली लगता कि ये 5G नया टॉपिक है और इसके ऊपर कुछ काम ऑलरेडी हुआ नहीं होगा, बट दैट वाज माय रॉन्ग परसेप्शन कि इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज टू इंडेक्स योर पेपर। आपका जो पेपर है जहाँ से आपने उसको डाउनलोड किया है उसको पहले आप इंडेक्स में या लाइन पे लगाओ। तो आई हैव रेफर्ड जर्नल और पेपर्स विच इज़ फ्रॉम IEEE। ये सारे पेपर जो है मैंने रेफर किए हैं, दे आर फ्रॉम IEEE, and very important is I have mentioned year of publication. I should refer the paper which are last 3 year के कम से कम मैं रेफर कर सकता हूँ। मीन्स अभी सपोज वी आर इन 2020, ये एक्चुअली लास्ट ईयर का सर्वे है। तो इन 20, 17, 18 and 19, that will be the year I should search. I cannot go for 2007 or 2010 or 2013। इतना ओल्ड सर्वे करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली उसके बाद कुछ साल गए हैं, उसके ऊपर कुछ डेफिनेटली काम हुआ होगा। So I should refer the material which is almost 3 year back, 3 or at the max 5 year। इससे ज़्यादा पुराना मटेरियल आपको रेफर नहीं करना। So that is first point, while I searching paper, I should just concentrate on year of publication। Okay, and दूसरा concentration क्या है, ये जो पेपर है that should related with your 5G। Okay, and when I search this I found tremendous work, and I make a list of this paper. You can see here it is about 108 papers I have downloaded। expected count is 150, इतना करना चाहिए आइडियली, बट एटलीस्ट 100 पेपर तो आपने रेफर करने चाहिए अगर आपका रिसर्च सर्वे गुड होना चाहिए तो। ओके, तो एक्चुअली आई हैव डाउनलोडेड 108 पेपर, एंड आई हैव मेक श्योर कि ये जो पेपर है दैट बिलोंग्स टू 5G टॉपिक के रिलेटेड हो। और दूसरा कंसंट्रेशन क्या देखा मैंने कि दे बिलोंग्स टू एटलीस्ट लास्ट 3 ईयर, 2017, 2018 और 2019। दैट इज माई पॉइंट ऑफ सर्च। एकादा पेपर मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत रिलेटेड है मेरे टॉपिक के, तो आई मे रेफर 1 or 2 पेपर विच इज बिलो 17, तो दैट इज पॉसिबल। क्योंकि ये रेफर करना ये नहीं करना बाद में डिसाइड होगा। एटलीस्ट पहला काम तो ये है कि आपको पहले आपके टॉपिक के रिलेटेड पेपर ढूंढने हैं, एंड दूसरा काम है दैट शुड बी लेस देन 3 ईयर और विद इन 3 ईयर लास्ट आपको उसको देखना है। एंड आप देख सकते हैं ये सारे पेपर्स IEEE के वेबसाइट से डाउनलोड किए गए। ऑल द पेपर्स आर फ्रॉम IEEE जर्नल, and IEEE is a worldwide standard journal you can refer। You have other options also, Springer or any Scopus Index paper you may refer। Okay, but I have gone through this all IEEE paper।
You got it? How to start your survey? All of you, क्या concentration किया मैंने इस particular first step में? Anybody repeat? Hello? Anybody can repeat? Exactly मैंने क्या first step में concentration किया है? Hello? Am I audible? Hello? Am I audible? मुझे आवाज नहीं आ रहा है आपसे. हेलो. Am I audible? कि मैं. Yes, sir. हाँ, okay. So can you tell me what is the first step in this particular step? मैंने क्या concentration किया है? In short. Hello. Are you getting what I am saying? क्योंकि ये सब काम आपको बीई में जाके करना ही है एनी हाउ. ये स्टेप्स आपको फॉलो ही करने पड़ेंगे. ओके, आई विल समराइज इट. इन स्टेप नंबर 1 मैंने पहला एक बड़ा पेड़ ढूंढा. ब्रॉड व्यू ऑफ योर टॉपिक इज 5G. ओके, 5G एंटीना पे मुझे काम करना है. ये एक बड़ा पेड़ है, इसके कुछ ब्रांचेस होंगे, अभी उसको मुझे ढूंढना है. ओके, सो आई विल नॉट बॉदर अभी मैं इसको बॉदर नहीं करूंगा कि एग्जैक्टली मुझे क्या काम करना है. सिर्फ पहला कंसंट्रेशन है, एक बड़ा नाम ढूंढना है मुझे, ब्रॉड एरिया. उसके बाद आई हैव टू डाउनलोड पेपर फ्रॉम रेफर्ड जर्नल विथ माय टॉपिक एंड मेन कंसंट्रेशन इज ईयर ऑफ पब्लिकेशन. बस इतना ही मैंने फर्स्ट स्टेप में किया है. आर यू गेटिंग दिस? हेलो. Yes, sir. हाँ, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आई एम ऑडिबल और नॉट. क्योंकि बीच में अगर रेंज जाता है तो गेट डिस्कनेक्टेड लाइक दैट. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू. वही तो एक रिस्पॉन्ड करते जाओ. ठीक है. सो दिस वाज वेरी सिंपल पॉइंट वी हैव डन इन फर्स्ट स्टेप. इसमें कोई क्रिटिकल ऐसा डिस्कशन नहीं है. फिर टाइटल ढूंढो, ब्रॉड व्यू. उसके पेपर डाउनलोड करो, कहाँ से? रेफर्ड जर्नल से. एंड मेक श्योर दिस आर लेटेस्ट, at least 3 years back. Okay, now and make sure. Okay, I am talking about good survey. अभी आपको इतना पेपर एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन you can try. Okay, now second step, I have to index my literature paper. अभी इस 108 पेपर में से मैंने 50 पेपर्स बाहर निकाले हैं. You can see this is a 5-page one and last count of my paper is 50. ये 50 पेपर मैंने उन 108 पेपर से बाहर निकाले हैं. नाउ उन 108 पेपर में से 50 कौन? हु आर दैट एलिजिबल 50? उसके लिए आपको सारे के सारे पेपर पढ़ने पड़ेंगे. ऑल 108 पेपर यू शुड रीड. देन यू विल कम टू नो दिस इज द पेपर विच इज रिलेटेड टू माई थीम. ओके, अभी नेक्स्ट काम क्या है आपको? उसको रिव्यू करना, रीड करना. ओके, and while reading you have to write down some columns. पहला है आपका ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये तो किया है आपने. नेक्स्ट इज ऑथर, क्योंकि आपको उसको बाद में साइटेशन देना है, इसलिए ऑथर का नाम भी मालूम होना चाहिए. देन इज अ कंस्ट्रक्शन डिटेल, क्योंकि मेरा 5G का एंटीना है, तो उसको पहले कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कौन सा मटेरियल रेफर किया है उन्होंने, कौन सा टेक्निक यूज किया है, उसका थिकनेस कितना है, विड्थ कितना है, ये सब उस पैराग्राफ में लिखा है. नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन.
क्या फ्रीक्वेंसी यूज किया है उन्होंने उस एंटीना को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि 5G में क्या फ्रीक्वेंसी है अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो सब लोगों ने अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम किया। सो दैट शुड बी टेकन अंडर स्पेसिफिकेशन, उसका गेन कितना होगा, बैंडविड्थ कितना होगा, ये सारा। देन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सबस्ट्रेट जो है वो कौन सा यूज किया, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग normal one is a FR4, that was the type of substrate used by most of the publisher. And then is about software hardware. पहला काम होता है नॉर्मली बिफोर फैब्रिकेशन यू शुड सिमुलेट योर रिजल्ट। ओके, तो सिमुलेशन करने के लिए आपको कुछ सॉफ्टवेयर लगेगा। तो बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग सॉफ्टवेयर पे काम किया है। एंड आफ्टर फैब्रिकेशन यू नीड टू टेस्ट इट। तो टेस्टिंग करने के लिए भी आपको एक सेटअप लगेगा, तो अलग अलग सेटअप उन्होंने यूज किए हैं, तो दैट आल्सो आई शुड नो। ओके, एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन। इस पर्टिकुलर एंटीना का एप्लीकेशन कहाँ पे होगा। 5G में 5G इज नॉट ओनली 5G मोबाइल। ओके, 5G का मतलब सिर्फ मोबाइल में ही यूज होगा, दैट इज नॉट द केस। देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस ऑफ 5G एज वेल। ओके, if you go for IoT applications, 5G is good one. If you go for unmanned vehicle, अभी वो कंसेप्ट आ रहा है कार विदाउट ड्राइवर, ड्राइवरलेस कार, तो उसमें डेफिनेटली आपका 5G नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो ऐसे 50 पेपर्स हमने उसको सॉर्ट आउट किया है। दिस आर 10, 20, then 30, then 40 and this is 50। ऐसे 5 पेज का ये लिटरेचर सभी। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप यू हैव फॉलोड इज रिव्यूइंग योर लिटरेचर। अभी आपने पेपर डाउनलोड किए थे, फिर डाउनलोड किया, एक्चुअली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीड इट on your laptop or computer. Okay, so literally I have taken xerox of all the papers. Okay, so that become about 600 or 700 pages of this total 108 paper. Okay, तो उसमें से क्योंकि all the papers read करना at the same time same day possible नहीं, उसके लिए आपको कम से कम 2-3-4 महीना कंसिस्टेंटली बैठना पड़ेगा। ओके, तो ऑल द टाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड फ्रॉम कंप्यूटर और लैपटॉप। तो आपने अगर उसका हार्ड कॉपी बनाया, उसको स्पायरल करके आपके पास रखा, तो जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप फ्रेश मूड में होंगे, तो आप एक आधा पेपर रीड करके ये पॉइंट्स निकाल के रखो, ये जो सारे हमने लिखे यहाँ पे। यू गॉट दिस सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्टेप, रिव्यूइंग योर लिटरेचर। यस, हेलो, यस सर। प्लीज रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि हमारा टाइम फिर बीच में ही वेस्ट हो जाता है। ओके, अभी और एक है, इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ दिस 50 देयर आर ओनली 10 पेपर व्हिच आर एग्जैक्टली रिलेटेड, मीन जो मेरे स्पेसिफिकेशन से मुझे मैच करना है, उसमें भी कुछ पेपर हो सकते हैं ऐसे 10 पेपर कि वो एग्जैक्टली मैच करते हैं। बाकी के जो 40 पेपर है वो समहाउ पार्शियली आपके काम से रिलेट करते हैं, लेकिन दे आर दे कैन बी रेफर्ड, बराबर क्या। तो अब उनमें से ये ऐसे कौन से पेपर है, 5 पेपर या 10 पेपर जो एग्जैक्टली मेरे काम से मैच करते हैं, उसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा। नाउ इन दिस स्टेप नंबर 3 I have to go for that paper. In short, actually I am finding research gap. This was my start of that step, what you call as a research gap. Okay, तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, जब मैंने सर्वे किया था, रिव्यू किया था, तो मैंने पहले लिटरेचर रिसर्च वेरिएबल फाइंड किए। ओके, जिस वेरिएबल पे मुझे रिसर्च करना है, उस पर्टिकुलर पैरामीटर को हम बोलते हैं रिसर्च वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट वेरिएबल इज बैंडविड्थ, then beam steering capacity, then beam width, then channel capacity, compact size, data rate, frequency, then gain, horizontal polarization, isolation, link reliability, low power, radiation efficiency, signal to noise ratio, then user proximity analysis, vertical polarization, VSWR, then frequency band, as I told you, then diversity analysis, then MEG, FBR, beam switching.
ऐसे 31 पैरामीटर मुझे मिले इस पूरे सर्वे के बाद कि इसके ऊपर लोगों ने काम किया है। मीन्स नॉट नेसेसरी सबने सभी के ऊपर काम किया है। कुछ पेपर ऐसे मिले मुझे कि उन्होंने सिर्फ ये 2 पॉइंट पे काम किया है। कुछ पेपर ऐसे मुझे मिले इन दोनों पे काम किया है। कुछ पेपर ऐसे मिले मुझे इन दोनों पे काम किया है। ओके, बट ओवरऑल ये सारे जो 50 पेपर है उन्होंने आइदर इसमें इसमें या इसमें किसी के ऊपर तो काम किया है। ओके, ऐसे टोटल रिसर्च वेरिएबल मुझे मिले 31 and it is very difficult to find your work in all this area. Okay, so this was paper number I have placed over here. I will start with paper number 1. आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने PP1, यानी पेपर आपका 1 है, ये 2 3 एक पेज पे 10 है। ओके, तो जहाँ पे सपोज ये पेपर 1 है, तो आई जस्ट सी की ये जो पेपर 1 है इसके ऊपर बैंडविड्थ पे काम हुआ है, देन कॉम्पैक्ट साइज पे काम हुआ है, देन गेन के ऊपर काम हुआ है, देन पोलराइजेशन के ऊपर काम हुआ है, आइसोलेशन के ऊपर काम हुआ है, प्रोफाइल के ऊपर काम हुआ है, पोलराइजेशन, देन फ्रीक्वेंसी बैंड कौन सा यूज हुआ है, देन डाइवर्सिटी गेन के ऊपर काम हुआ है, देन एनालिसिस पे काम हुआ है। जहाँ जहाँ पे काम हुआ है वहाँ पे मैंने 1 रखा। ये 1 क्यों रखा? क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू एड इट। यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे टोटल किया है 7, मीन्स पेपर 1 में हुआ है काम, पेपर 2 में हुआ है, 3 में हुआ है, 4 में हुआ है, लेकिन 5 में नहीं हुआ है उस पेपर के पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर काम। 6 में हुआ है, 7 में हुआ है, 8 में हुआ है, 9 में नहीं हुआ है, 10 में नहीं हुआ है। तो ऐसे टोटल कितने पॉइंट हो गए? मुझे 7 मिल गए। ओके, आई एड दिस नंबर विथ नेक्स्ट 10 पेपर। सेकेंड पेज है, यहाँ 11 से शुरू होता है एंड 20 तक आप उसको जाएंगे। फिर से सेम पैरामीटर पे काम हुआ है, यहाँ पे मुझे 5 वैल्यू मिला। देन रिमेनिंग 30 पेपर, 10 पेपर, ये देखिएगा 21 टू 30 पेपर है, ये 21 टू 30 और 10 पेपर। नेक्स्ट 10 पेपर दैट इज 31 टू 40। ओके, फिर यहाँ पे मुझे काउंट मिला रिमेनिंग 10 पेन्स पेपर्स 41 टू 50। ओके, ऐसे 50 पेपर का मैंने पूरा सर्वे किया, कुछ वेरिएबल्स फाइंड किए, कौन से पेपर ने कौन से वेरिएबल के ऊपर काम किया, और यहाँ पे मुझे टोटल काउंट मिला। एंड फाइनली आई ऐड दिस टुगेदर। ओके, ये पांचों पेज का जो एडिशन है यहाँ पे मैंने लिखा है। बैंडविड्थ के ऊपर 30 लोगों ने काम किया है, बीम स्टीयरिंग के ऊपर 7 लोगों ने काम किया है, बीम विड्थ के ऊपर 8 लोगों ने, सॉरी सीसीपी चैनल कैपेसिटी के ऊपर 8 लोगों ने काम किया। ऐसे मैंने पूरा फाइंड किया काउंट। Are you getting this? How this count I get? Yes. Yes, sir. हाँ, तो आप अभी पीछे में जाता हूँ। मैंने कुछ कॉलम्स है, कुछ सेल है, उसको हाईलाइट किया है। किसी को येलो किया है, किसी को ग्रीन किया है, किसी को रेड किया है। तो ये मैंने डिसाइड किया था कि ये मेरे इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर इम्पोर्टेंट पेपर है उसको मैंने रेड से हाईलाइट किया है। रेड यानी 37, सपोज 37 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर मी, जिसमें मेरे जो पैरामीटर है उसके ऊपर काम हुआ है। जो येलो है और जो ग्रीन है, दे आर समहाउ पार्शियली रिलेटेड टू मी। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 नंबर या 49 नंबर, इसमें मैंने कोई मार्किंग नहीं किया। मतलब दिस इज अ पर्टिकुलर पेपर इज ऑलमोस्ट 10 और 20% पार्शियली मैच होता है मुझे। ये अबव 50% अगर मैच होता है तो मैं उसको येलो करूंगा, फिर ग्रीन करूंगा, और बहुत ही मैच होता है 80% 90% तो उसको मैं रेड रखूंगा। So that in future I will just concentrate on those paper who are actually मेरे काम के हैं। So you can see here in every page, start with this page, page number 1 पे कोई रेड नहीं है, then page number 2 एक रेड है, पेज नंबर 2 पे एक हाँ, पेज नंबर 2 पे 2 रेड है, पेज नंबर 3 पे एक रेड है, पेज नंबर 4 पे एक रेड है, और पेज नंबर 5 पे और एक रेड है। मीन्स ऐसे मुझे कम से कम 5 या 6 पेपर मिले जो एग्जैक्टली मेरे काम के ऊपर वर्क करते हैं।
ओके एंड इसका एडवांटेज क्या होगा आगे जाके, आई कैन सी दिस पेपर एज अ कंफर्म रेफरेंस। ओके, बाकी के मुझे गारंटी नहीं होगा कि ये मेरे काम के होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर पे काम किया होगा, इसलिए मैं उसको रेफर कर सकता हूँ। नाउ फाइनली आई गॉट दिस काउंट टोटल 37, 15, 23, कि कोई 1 है, कोई 3 है, कोई 2 होगा, कोई 0 होगा एंड सो ऑन। ओके, नाउ look at this count carefully. Highest count I got is a 30, lowest count I got is a 0. Okay, now tell me, अगर इस पर्टिकुलर पैरामीटर का वैल्यू 30 है तो इसका कंक्लूजन मतलब क्या निकलता है? बैंडविड्थ एक रिसर्च वेरिएबल है जिसके ऊपर 30 लोगों ने काम किया है, 30 पेपर में उसका जिक्र हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या कंक्लूजन है? आपके काम का क्या है, कैसे होगा ये नंबर? एनीबडी कैन शेयर हिज व्यू? Yes. Am I audible? Yes, sir. Can you share your views on this number 30? एक वेरिएबल है जिसका टोटल काउंट 30 मिला मुझे, मीन्स 30 पेपर में उनका जिक्र हुआ, तो आपका आपका उसका क्या बेनिफिट है या कुछ क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं आप उससे? यस, एनी ओपिनियन? ओके, आई विल टेल यू। देखो, ये जो 50 पेपर है वो ऑलरेडी सॉर्टेड पेपर है, क्योंकि वो मैंने 108 पेपर से 50 निकाले हैं। ओके, तो पहला एक सॉर्ट हुआ ही है। उसके बाद उस 50 पेपर में से 30 पेपर मुझे ऐसे मिले जिसके अंदर ये वेरिएबल जिक्र किया है, दैट इज बैंडविड्थ। इसके ऊपर 30 लोगों ने काम किया है। इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर वर्क इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट सभी ने उसके ऊपर काम किया है। So this is not a parameter on which you should work. Am I right? Are you agree with this? बहुत सारे लोगों ने इसको रेफर किया है। So this is not a parameter on which you should concentrate or you should work. Am I right? Are you agree with this my sentence? Hello? Yes, sir. बराबर है कि नहीं? अगर बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम किया है तो आपका कोई मतलब नहीं ना, आपके काम को कोई देखेगा नहीं। अभी अभी रिवर्स मुझे बताओ, अगर ये काउंट 0 होता है तो क्या मतलब होगा अभी? हेलो, बोलो ना। हेलो, what? ओके ओके, आई विल टेल यू। अभी उसके अपोजिट मतलब निकलेगा ना इसका। ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, इसके ऊपर 0 लोगों ने काम किया है, इसका मतलब है देयर इज अ ट्रेमेंडस स्कोप फॉर यू पीपल टू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। आर यू एग्री विद दिस? Yes, sir. बराबर क्या? 0 है, 1 है या 3 है या 5 है या 6 है, एट द मैक्स 7 है। ऐसे पैरामीटर को आपको अभी सॉर्ट आउट करना है। सपोज ये 1 2 देन 7 1 6 1 3 1 1 फिर ये 1 1 0 6 3 4 5 लाइक दैट। ये पैरामीटर को आपको अभी सॉर्ट आउट करना है, व्हाट वी कॉल एज फाइंडिंग रिसर्च गैप।
क्या एग्जैक्टली हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं अभी, रिसर्च के गैप को फाइंड कर रहे हैं। ओके, सो करना क्या है, हमें जिन पैरामीटर पे काम नहीं हुआ है उनको ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सारा येलो से हाईलाइट किया है। जो येलो सेल है वो कम से कम 7 या 7 से कम है। ओके, आई 8, 9 और 10, ये 10, 23, 22, 22, देन 15, 30, इसको सेल को हाईलाइट नहीं किया, सिर्फ जो 7 या 7 से कम वाले नंबर है उनको मैंने हाईलाइट किया है, दैट वाज येलो। इन शॉर्ट, आई फाइंड अ रिसर्च गैप। समझ में आ रहा है? Are you getting this? How to find research gap? Yes, sir. ओके, अब ये जो येलो हाईलाइटेड सेल्स है ये भी आपने अभी काउंट किए तो कम से कम 10-15 सेल तो मिल जाएंगे। फिर भी ये अनफेयर है, यू हैव टू डीलिमिट योर वर्क। 15 पैरामीटर पे आप काम नहीं कर सकते एट अ टाइम, तो आपको इनमें से फिर से कुछ ऐसे सिलेक्टेड पैरामीटर ढूंढने हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। सो दैट इज now you are in position to come to your survey. This was a short synopsis of my paper. इंट्रोडक्शन डाला है, ये जस्टिफिकेशन दिया है मैंने, वाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4G 5G, वाई टू स्विच ओवर टू द 5G, क्या क्या पैरामीटर है जो आपका इनहांस हो रहा है, ये एक टेबल से रिप्रेजेंट किया है। देन दिस वाज अ रिव्यू। अब ये जो टेबल है ये वही टेबल है जो मैंने पहले यहाँ पे दिखाया था। दिस वाज द सेम टेबल आई हैव कॉपीड ओवर हियर। ये 31 पैरामीटर है, आप देख सकते हैं ये 31 पैरामीटर एज इट इज मैंने कॉपी किया है, एंड फ्रॉम दैट आई हैव टू फाइंड गैप। तो कैसे फाइंड गैप करेंगे, तो उसको मैंने ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट किया है। ग्राफिकली ये सारे पैरामीटर इस एक्सिस पे है, ये 31 एक्सिस है और ये आपका काउंट है। ओके, एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो आई विल कीप दैट लाइन ऑन 7। तो 7 के नीचे के जो पैरामीटर है उनके ऊपर मुझे काम करना है, 7 के ऊपर के जो भी पैरामीटर है उसको मुझे इग्नोर करना है। आर यू गेटिंग दिस? इट्स अ बेटर व्यू ऑफ योर ऑल 31 पैरामीटर। जो एग्जामिनर है, एक्सटर्नल है, उसको इमीडिएटली समझ में आएगा कि आपने एग्जैक्टली क्या किया। Okay, so this was proposed, it is not a confirmed, okay, it was a proposed research variable for 5G smart antenna. Okay, so अब ये 31 से हमने सॉर्ट किए, हम कम से कम 10, 12 या 15 पे आ गए। okay, now from that 15 again you have to find such variable so that on which you can work. कुछ 4 या 5 या 6 वेरिएबल को आपको चेक करना है, and all this now from this thing I got 12 variable. ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया उसके बाद मुझे 12 वेरिएबल्स मिले, and this was that discuss over here. ओके, एंड उस 12 में से मुझे सारे 12 के 12 यूज नहीं करने हैं, तो मैंने उसको डीलिमिट किया, कम किया, और एक 5-6 पैरामीटर उसको मैंने इन ऑब्जेक्टिव डाल दिए। अब ये मेरे प्रपोज ऑब्जेक्टिव है, मुझे करना क्या है, एक पैरामीटर है उसको ऊपर काम करना है, उसका वैल्यू कितना है, उसको कम करना है या ज़्यादा करना है, ये आपको बाद में डिसाइड करना है। ये तो ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया। यू गॉट दिस, हाउ टू फाइंड योर ऑब्जेक्टिव? यस, Yes, sir. तो लिटरेचर गैप फाइंड किया, गैप से मैंने प्रपोज्ड वेरिएबल फाइंड किए और उसमें से हमने ऑब्जेक्टिव निकालने के लिए कुछ लिमिटेड पैरामीटर पे काम किया, what we call as the delimiting our work. Okay, and then we have to go for proposed methodology, कैसे हम उसको कंप्लीट करेंगे, क्या हार्डवेयर लगेगा, क्या सॉफ्टवेयर लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, कौन सा मेथड आप उसको यूज करेंगे कंप्लीट करने के लिए, ये आपको बताना है। एंड देन यू हैव टू गो फॉर कंपैरेटिव स्टडी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपका अभी काम हुआ उसका और आपके पहले एग्जिस्टिंग वर्क का क्या रिलेशन है, वेदर योर वर्क इज बेटर और इट इज बैड, दैट यू हैव टू जस्टिफाई। ओके, नाउ इन
synopsis. Now I'll tell you that synopsis. अब इसको फिर से expand किया है in a report form. So same thing, theory थोड़ा ऐड किया है, वही टेबल ऐड किया है. आर्टिकल्स, हाँ ये वाले जो आर्टिकल्स है ये हमने रिव्यू किए हैं 2019, 2018, 2017 तक हमने उसको रेफर किया है. और वो जो मैंने रेड या ग्रीन या येलो हाईलाइट किए थे वो सब यहाँ पे आ गए. ये जो है विथ ऑथर नेम, उसका रेफरेंस नंबर क्या है ये यहाँ पे लिखा है. उसमें उन्होंने कौन सा टेक्निक, कौन सा पैरामीटर पे काम किया है, सॉफ्टवेयर क्या यूज़ किया, हार्डवेयर क्या यूज़ किया, एप्लीकेशन क्या है उस पर्टिकुलर का, ये सब यहाँ पे लिखा. एंड नाउ यू कंप्लीट दिस सर्वे. ओके, एंड then these are the some variables on which you are working on. And from that you find this gap. एक लाइन आपने ड्रॉ किया, इसके नीचे के पैरामीटर पे आप काम करेंगे, ऊपर के नहीं करेंगे. उसके बाद रिसर्च गैप फाइंड हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव फाइंड हो गए, एंड देन प्रपोज मेथोडोलॉजी, ये तो आपने ऑलरेडी बताया था. देन दिस वाज द फ्लो चार्ट ऑफ दैट मेथोडोलॉजी, आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे. Okay. Then this was one extra point I have done, what you call as the state of art. जो बोला था आपका state of knowledge, इसको हम बोल सकते हैं state of art comparison. अब ये जो पैरामीटर है exactly वैल्यू कितना है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पैरामीटर गेन, लेकिन गेन कितना है, इट इज 4.8 dBi, ये है 9.3, ये है 7. ये जो है पेपर नंबर है 3, 6, 7, 8 एंड सो ऑन. तो उनमें उन्होंने कितना गेन अचीव किया है, दैट यू टू नो. पेपर है, इसके ऊपर गेन के ऊपर काम ही नहीं हुआ, तो ये ब्लैंक है ये वाला. ओके, तो आप नीचे आएंगे तो सारे पेपर कवर करेंगे, एंड एट द एंड 50 पेपर कवर होने के बाद ये आपका कॉलम होगा, दिस वर्क. तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका गेन कितना होगा, और उसको कैसे डिसाइड करेंगे आप, ये प्रीवियस रेफरेंस यूज करेंगे. इन्होंने अगर 12 या 16 तक गए, ओके, सो ऑब्वियसली मेरा गेन उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही एंटेना इज गुड, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सारे पैरामीटर यहाँ पे मैंने नोट किए हैं, ये सारे प्रीवियस डिस्कशन है, एटलीस्ट सेम और मोर देन दैट आई शुड अचीव. ओके, तो सपोज यहाँ पे इट इज 90%, तो आप देख सकते हैं ऊपर ऑलमोस्ट 90 या लेस देन 90 है, तो आई शुड गो फॉर मोर देन 90%. आर यू गेटिंग दिस स्टेट ऑफ आर्ट? यस. Yes, sir. तो ऑब्जेक्टिव में आपने वेरिएबल डिसाइड किए, एंड उन वेरिएबल को कहाँ तक आपको अचीव करना है, बराबर क्या. अगर आपका ये 90% आपने बोला, लेकिन आपका 50% हो रहा है, 60% हो रहा है, तो दैट इज डेफिनेटली ए ड्रॉबैक. मीन्स आपके काम में जो आपने कंप्लीट किया उसमें उसके अंदर कुछ कमी है, so that you are not able to achieve this much %. Okay, so this was your proposed objective answer or variable. उनका वैल्यू कितना होगा ये आपने डिसाइड किया. Okay, so what this particular part we call is the state of art. And definitely in goal को अचीव करने के लिए आपको जो आपको पहले आपने बताया कि ये मेथड में फॉलो करूँगा, ये मेरा स्ट्रैटेजी होगा, ये टेस्ट करूँगा, ये मटेरियल यूज़ करूँगा, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, तो उसमें कुछ मुझे वेरिएशन करने पड़ेंगे, सो दैट आई शुड अचीव दिस वैल्यू. बराबर है. एंड देन दिस इज व्हाट हाइपोथेसिस यू हैव अज्यूम, H1, H2, H3, H4, H5. हाइपोथेसिस का मतलब है ये वैल्यूज जो यहाँ पे मैंने बोला, सपोज 90%, दिस वाज हाइपोथेसिस ना, इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ये ट्रू कब होगा, जब आपका एंटीना डिजाइन होगा, उसके बाद आप टेस्ट करेंगे, और अगर आपका टेस्ट का रिजल्ट 90% आता है तो दैट वाज अ ट्रू. बट बिफोर मैन्युफैक्चरिंग यू आर सेइंग आई विल अचीव 90%, तो उसको हम बोल सकते हैं हाइपोथेसिस. तो दिस इज व्हाट रिटन इन दिस वन, H1, H2, H3, H4, ऐसे कुछ हाइपोथेसिस मैंने एज्यूम किए, एंड दिस वाज एक्सपेक्टेड आउटकम, इट इज नॉट कंप्लीट आउटकम. आई कैन नॉट राइट रिजल्ट राइट नाउ, बराबर क्या. This will be my proposed expected outcome. I should write in a paragraph. And this was my plan of research. Normally हमें 2 साल का पीरियड मिलता है इसके ऊपर काम करने के लिए,
तो ये पूरा 6 महीने का पीरियड है, ये 1 to 6 मंथ, देन 7 to 12, आपको 1 साल का पीरियड मिलता है बीए में जाके, तो आप मंथली उसको प्लान कर सकते हैं। तो दिस वाज सम स्टेजेस, एक्सटेंसिव एंड रिगरस रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये आपको करना है। ये कब करेंगे आप? तो आपने देखा होगा मैंने कम से कम 30 मंथ तक उसको हाईलाइट रखा है। इसका प्योरली मतलब है आपका लिटरेचर सर्वे यहाँ पे खत्म नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि 1 साल के बाद एक नया पेपर आपको लेटेस्ट मिल जाए जिसमें और कुछ अच्छा हो सकता है, तो you should also refer that paper. So you can see that this portion is highlighted till last 30 month. लास्ट के 6 मंथ में एक्चुअली आपका रिपोर्ट राइटिंग का काम होता है, उस टाइम अभी आप डाइवर्ट नहीं हो सकते, तो आप लास्ट टिल 30 मंथ तक आप ये सर्वे का काम जारी रख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेप्स? सिमुलेशन करना है, क्यों बाद में डिज़ाइन करना है, कुछ टेस्टिंग करना है, ये सब आप लिमिट डिसाइड करो, 2 महीने, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा। एंड फाइनली रिपोर्ट राइटिंग करना होगा, पेपर पब्लिश करना होगा, सिनॉप्सिस लिखना होगा, थीसिस लिखना होगा। इसके लिए आप ये पीरियड 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का दे सकते हैं। दैट इज योर चॉइस। ओके, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द लिटरेचर रिव्यू, जो हमारा अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये कहाँ तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके 2 साल का पीरियड है रिसर्च का, तो कम से कम 1.5 साल तक आपको ये टॉपिक कंटिन्यू रखना है, लिटरेचर सर्वे। आपके केस में अगर एक साल का प्रोजेक्ट है, तो कम से कम 7 महीने 8 महीने तक आपको ये सर्वे वाला काम जारी रखना है। लास्ट के 2-3 महीने आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बाद में आपको रिपोर्ट जनरेट करना पड़ता है। उसके बाद जो भी वेरिएशन होंगे, दैट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। So this is how you can complete your work, and this is what reference, ये जो 50 पेपर मैंने रेफर किए, ये सारे रेफरेंस यहाँ पे आएंगे 1 to 50। Okay, all of you get this? Hello? Hello? Yes, sir. हाँ, ओके, अभी एक काम पेंडिंग रहा मेरे साइड से कि मुझे आपको ये बताना था कि ये जो जर्नल है, पेपर, वेबसाइट है, ये ऑथेंटिकेट है, ये इंडेक्स्ड है, ये कैसे चेक करेंगे? तो आई विल टेल यू वन वेबसाइट, your university website, unipune.ac.in. This was actually I can say nationwide, पूरे इंडिया में we should proud this particular point कि पूरे इंडिया में जो आपका जो केयर है, यूजीसी का केयर, या आप बोल सकते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है रिलेटेड टू ऑल द वेबसाइट who are authenticate and who are not authenticate, ये जो काम है ये हमारे पूना यूनिवर्सिटी में होता है। और ये पूरा जो काम है पूरे इंडिया में जो चलता है, वो पूरा काम यूनिवर्सिटी में वर्क होता है, मीन्स एग्जीक्यूट किया जाता है। दिस पूना यूनिवर्सिटी इज द फाइनल अथॉरिटी who will decide whether this conference, this publication is authenticate or not. Okay, so you have one tab in this particular is UGC care. Okay, तो यहाँ पे आपको आना है, and when you press this you will come to this page. Okay, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टैब UGC केयर वाला, वेबसाइट आपका नाम है unipune.ac.in। यहाँ पे UGC केयर नाम का एक टैब होगा, यहाँ पे आके प्रेस करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज tell you which are the list, they will publish a list of conferences or journals who are valid. Okay, so basically they have divided into 2 groups, group 1 and group 2। तो आपको जिस कॉन्फ्रेंस में आपको ये सब पब्लिश करना है मटेरियल, वहाँ उसको आपको सर्च करना पड़ेगा। मीन्स यू वांट टू पब्लिश और यू वांट टू चेक ISSN नंबर, you want to check publisher, you want to check subject or language of publication and like that,
and you have to search here that journal. अगर वो authenticate है तो you will find this either in group 1 or either in group 2. Okay, and they will tell you about citation of that particular site, how much it is. Then you can decide whether it is valid to publish or not. If you find your journal is not listed in either group 1 or either in group 2, definitely this website is a fake website. Okay, that you have to ensure this was a fake website. Are you getting this? How to find fake website? क्योंकि अगर आप वही वेबसाइट नेट पे सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको सेम नाम मिल जाएगा, लेकिन यू आर नॉट श्योर दिस वाज अ लिंक विच इज फ्रॉम ओरिजिनल जर्नल एंड इट इज नॉट फ्रॉम फेक जर्नल. समजता मी काय बोलतोय ते? Yes, sir. So you please refer this particular page for your publication. जब आपका काम कंप्लीट होगा और कहीं आपको पब्लिश करना है तो आपको साइटेशन देखना है, whether this site is valid or not valid, इसको चेक करना है तो आप यहाँ पे आएंगे. Every year Pune University is going to publish this list in group 1 or group 2. Okay, now you have to make sure that आप जो देख रहे हैं वो लेटेस्ट ईयर में होना चाहिए. यानी अभी हम 2021 में है तो मुझे कौन सा लिस्ट रेफर करना है? 2020 वाला. I should not refer list of 2019 or 2018 or 2017. Reason is, सपोज एक जर्नल है 2019 में ये वैलिड था, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी को पता चला कि वहाँ पे कुछ अनऑथराइज काम हो रहा है, कुछ फेक पब्लिक मटेरियल हो रहा है, कुछ पैसे का लेन देन चल रहा है. ऐसे अगर यूनिवर्सिटी या उनकी टीम को लगता है तो जो जर्नल 2019 में वैलिड था वो 2020 में वो बैन कर देते हैं. दैट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ जर्नल. दैट इज द रीजन यू हैव टू मेक चेक योर जर्नल लिस्ट विच इज द लेटेस्ट वन. लेटेस्ट का मतलब है 2021 में है हम अभी, तो आपको चेक करना है 2020 वाला. 21 का तो अभी पब्लिश नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको 2020 का लिस्ट चेक करना पड़ेगा. Okay, all you get this? All of you get this? Yes, sir. So this is what about literature survey. As per my knowledge, definitely you will get benefit of this particular work. ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया है मैंने. अगर आपको लगता है कि कुछ पार्ट समझ में नहीं है, आपको कुछ रिपीट करना है, तो यू कैन चेक दिस रिकॉर्डिंग इन योर अकाउंट. आपके